श्रीमान अतिथिगण चंद्रवन भाई सर, विद्युत विभाग के प्रमुख श्रीमान एस.पी. पटेल सर एवं शिक्षक श्री पी.के. शाह सर एवं मेरे सहपाठियों, आज हम सब यहाँ एक ट्रैक्शन विशेषज्ञ के द्वारा लेक्चर के लिए सम्मिलित हुए हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन एंड कंट्रोल जो हमारे 5वें सेम में एक मुख्य विषय रूप से जाना जाता है, जिसका सीधा अर्थ है ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए किया जाता है। जो विद्युत ऊर्जा के सहायता से चलाया जाए उसको विद्युत ट्रैक्शन कहते हैं, और उसमें गति के लिए आवश्यक प्रेरक शक्ति विद्युत मोटरों के द्वारा दी जाती है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के, उसमें से विशेष करके ट्रैक्शन सिस्टम है, स्पीड टाइम कर्व है, ब्रेकिंग है, ओवरहेड करंट कनेक्शन है, ये सब आदि विषय हैं। और आज इसके ऊपर हम सब मंथन करने आए। इस विषय के आज जो विषय हमको चलाने वाले मुख्य अतिथिगण श्री चंद्रवन भाई सर हैं, वो अपने इंडियन रेलवे में से सीनियर सेक्शन इंजीनियर में से रिटायर्ड है एवं लोको सेट वलसाड़ में उनको 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और इन्होंने नाना प्रकार के ऐसे घने लेक्चर उन्होंने बच्चों को दिए हैं और बच्चों को काफी इस ट्रैक्शन सब्जेक्ट में मदद किया है। तो सबसे पहले मैं अपने विद्युत विभाग के प्रमुख श्री एस.सी. पटेल सर को निमंत्रित करता हूं कि फूलों का गुलदस्ता देकर श्रीमान सर को सम्मानित करें। सर अब मैं बिना देरी किए आगे की कमान आज के मुख्य अतिथिगण सर को देना चाहूंगा कि अपना जो चालू करें। डिप्लोमा होल्डर 1973 में दाहोद पॉलिटेक्निक थी मैं डिप्लोमा करेलो इलेक्ट्रिकल में 7 वर्ष प्राइवेट में जॉब કર્યા પછી 1980 में रेलवे में ज्वाइन करेली અને 2013 में 33 वर्ष इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में लोको शेड में जॉब કરીને रिटायरमेंट થઈ ગઈ। તમારે પણ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स स्टूडेंट तरीके रेलवे में घणो मोटो स्कोप रेलवे ना घणा डिपार्टमेंट છે તમે સંભળાયું રેલવે ના ઘણા ડિપાર્ટમેન્ટ છે જ્યાં ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપ્લોમા હોલ્ડર ને દે આપતો ઓકે। તો રેલવે ની એક સાઇટ છે આરઆરબી રેલવે રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ, એના થ્રુ તમે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકો બરાબર। અને આજની તારીખમાં જો તમને રેલવેમાં જોબ મળે તો મિનિમમ 35,000 સેલેરી તમારી રહે, નવા પે સ્કેલ પર 35,000 સેલેરી ઓકે। જોબ સિક્યુરિટી, મેડિકલ ફેસિલિટી, રેલવે ક્વાર્ટર ફેસિલિટી, તમારા બાળકોને એજ્યુકેશન ફેસિલિટી, તો આ બધું તમને મળે। फ्री पास મળે એસી ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા બનવા માટે તમારું તમારા ફેમિલી ને બધાને ઇન્ક્લુડ ઓકે। તો આઈ હોપ કે તમે જ્યારે પાસ આઉટ થાઓ યુ શુડ એપ્લાય ફોર ધ રેલવે બરાબર। સી મેં જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કર્યું ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટીઆરએસ ટ્રેક્શન રોલિંગ સ્ટોક, એનો મતલબ છે એન્જિન, એટલે રેલવેની ભાષામાં ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવ। Now what is traction? સર એમ જ કહ્યું traction એટલે anything that can be either pushed or pulled, it is a traction force okay। This force may be electrical, then it is called electrical traction. If the force is mechanical, it is called mechanical traction। So we will study today electrical traction, the force generated by electrical energy. Okay. So today's session will be like that. पहला 3 कलाक
બોર્ડના ઉપર ટ્રેક્શન વિશે હું સમજાવીશ કઈ રીતે એન્જિનને પાવર સપ્લાય આવે છે ટ્રેક્શન સબસ્ટેશનથી ગ્રીડ સિસ્ટમથી ત્યારબાદ એન્જિનને સપ્લાય લઈને કઈ રીતે યુટિલાઇઝ કરે છે અને કઈ રીતે રિટર્ન કરંટ જે છે ફરીથી સબસ્ટેશનમાં જાય છે ત્યારબાદ બીજી પોણો કલાક જે છે જે પણ અહીંયા બોર્ડ પર હું તમને થિયરી શીખવાડીશ એ થિયરીમાં જે વસ્તુ તમને જોવા મળશે પેન્ટોગ્રાફ ટ્રેક્શન મોટર ટ્રાન્સફોર્મર આ બધી વસ્તુ તમને પ્રેઝન્ટેશનમાં પણ જોવા મળશે વિડીયોમાં પણ જોવા મળશે ઇમેજીસમાં પણ જોવા મળશે અને ત્યારબાદ અડધો કલાક આપણે ક્વેશ્ચન આન્સરનો રાખીશું તમારા મનમાં જે પણ ક્વેશ્ચન હોય એ તમે મને પૂછી શકો છો રેજર ઓકે નાઉ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ये ट्रेन मुंबई से स्टार्ट થાય तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड એને સપ્લાય આપે ટ્રેક્શન એ ટ્રેન ગુજરાતમાં આવે તો ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ આપે સપ્લાય આગળ જતા રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશ ઉત્તર પ્રદેશ એ રીતે જે સ્ટેટમાંથી ટ્રેન પાસ થાય દરેકની ગ્રીડ સિસ્ટમ ટ્રેક્શન સબસ્ટેશનને સપ્લાય આપે ग्रिड नो सप्लाय 132 kV 3 फेज એમાંથી બે ફેઝ લઈને ટ્રેક્શન સબસ્ટેશનના ટ્રાન્સફોર્મરને આપવામાં આવે પ્રાઇમરી જે છે 132 kV રિસીવ કરશે અને સ્ટેપ ડાઉન કરીને 25 kV સેકન્ડરીમાં આવશે સેકન્ડરીમાં 25 kV આવશે આ 25 kV જે છે એમાંથી એક સપ્લાય જે છે સિંગલ ફેઝ તે ઓવરહેડ લાઈનને જશે એમાંથી પેટ્રોગ્રાફ પોતે સપ્લાય લેશે અને એન્જિનને આપશે સબસ્ટેશનની અંદર સેકન્ડરીનો એક છેડો ગ્રાઉન્ડ કરેલો આ ઇલેક્ટ્રિકલ સબસ્ટેશન જે છે ટ્રેક્શન સબસ્ટેશન રેલવે લાઇનની બાજુમાં જ હતું અને એક સબસ્ટેશન 65 થી 70 કિલોમીટરની લાઇન અપ અને ડાઉન બંનેનું ફીડિંગ કરશે एक सबस्टेशन 65 થી 70 કિલોમીટર લાઇનને ફીડિંગ કરશે ત્યારબાદ બીજું સબસ્ટેશન આવશે એક ગામ પાસે ગુલવાડમાં છે બીજું બેસ્તારમાં છે ત્રીજું અહીંયા ભરૂચમાં છે ખ્યાલ આવ્યો તો દર 65 થી 70 કિલોમીટરે એક સબસ્ટેશન હશે અને દરેક સબસ્ટેશન જે છે તે ટ્રેક્શન સપ્લાય જે છે તે એન્જિન માટે ફીડિંગ પૂરું પાડશે Again, 132 kV લઈને ટ્રેક્શન સબસ્ટેશનનું ટ્રાન્સફોર્મર 25 kV માં સ્ટેપ ડાઉન કરશે 25 kV માંથી જે સિંગલ ફેઝ નીકળે છે તે ઓવરહેડ વાયરને જશે ઓવરહેડ વાયર એન્જિનને સપ્લાય લેશે પેટ્રોગ્રાફના થ્રુ એમાં યુટિલાઇઝ થશે અને પૈડામાં સપ્લાય જે છે પૈડામાં આવશે બોડીના થ્રુ પૈડામાં આવશે અને પૈડામાંથી એ જે છે તે ટ્રેકમાં ચાલુ જશે આગળ સિસ્ટમ કેવી છે નેક્સ્ટ ફિગરમાં બતાવીશ ખ્યાલ આવ્યું 132 kV ગ્રીડ ત્યારબાદ 65 થી 70 કિલોમીટર દૂર બીજું સબસ્ટેશન સેમ રીતે ફંક્શન કરશે આમાં
સ્ટેપ ડાઉન કરીને 132 kV ને 25 kV બનાવી આપશે. હવે તમે જો આ કોન્ટેક્ટ વાયર કન્ટિન્યુઅસ હોય છે, જો આ કન્ટિન્યુઅસ હોય તો પહેલામાં મેં ફેઝ લીધેલો યલો એન્ડ બ્લુ, સેકન્ડમાં મેં લીધો રેડ એન્ડ બ્લુ. તો આ બંને સબસ્ટેશન જે છે ટ્રાન્સફોર્મર શોર્ટ થઈ જશે. શોર્ટ સર્કિટ નહીં થાય એટલા માટે આ જે કોન્ટેક્ટ વાયર છે એ બેની વચ્ચે રેડ વાયર ઝોન હશે, એને કહેવાય છે ન્યુટ્રલ સેક્શન. દર 65 કિલોમીટર પછી જે કોન્ટેક્ટ વાયર છે જેનાથી પેટ્રોલ સપ્લાય થઈ છે, વચ્ચે એક ડેડ વાયર આવે છે. એ ડેડ વાયરનું કામ છે આ સબસ્ટેશનને પેલા સબસ્ટેશનના બંનેના ફેઝને ફેઝ આઉટ કરો, બંને આપસમાં શોર્ટ નહીં થઈ એટલા. આ ડેડ વાયર છે એને કહેવાય છે ન્યુટ્રલ સેક્શન. આ ડેડ વાયર જ્યારે આવવાનો હોય ત્યારે ડ્રાઈવરને માસ્ટના ઉપર પોલના ઉપર ઇન્ડિકેશન આવે છે કે ન્યુટ્રલ સેક્શન ઇઝ અપ્રોચિંગ. તો ડ્રાઈવર એને જોઈ બોર્ડ પરથી તો આસિસ્ટન્ટ ડ્રાઈવર છે, આસિસ્ટન્ટ લોકો પાયલટ કે ડ્રાઈવરને કહે વી આર એપ્રોચિંગ ન્યુટ્રલ સેક્શન. એટલે ડ્રાઈવર શું કરે, માસ્ટર કંટ્રોલરથી જે નોચઅપ કરે છે તો ટ્રેક્શનને 0 કરી દે, બધા બ્લોઅર્સ ઓફ કરી દે, સર્કિટ બ્રેકર ઓપન કરી દે. શરૂઆતના દિવસોમાં અમે પેન્ડુલમ બ્લોઅર કરતા હતા, હવે પેન્ડુલમ બ્લોઅર નથી કરતા. પેન્ડુલમ રેઝર લઈએ અને પહેલા સ્પીડ લઈ લઈએ એન્જિન કે જેથી ન્યુટ્રલ સેક્શનમાં રોલિંગમાં ગાડી આગળ બીજા ફેઝમાં ચાલી. ઓકે, તો 10, 15, 20, 25 યા 100 ની સ્પીડથી જે પણ મેન્ટેન રાખે એ મેન્ટેનથી એ બીજા સેક્શનમાં એ લાઈવ પાર્ટમાં આ ડેડ વાયર પાર કરીને લાઈવ સેક્શનમાં ફરીથી આવી જાય. જેવો લાઈનમાં આવી ગયો ફરીથી સર્કિટ બ્રેકર ક્લોઝ, બ્લોઅર સ્ટાર્ટ અને ટ્રેક્શન લઈને આગળ સ્પીડ લઈને ગાડી આગળ ચાલે. હવે આ જે છે 25 kV જે આવ્યો એ માસ પર કઈ રીતે કનેક્ટ થાય છે એ બતાવો. રેલવે ટ્રેકની બાજુમાં રેલવે ટ્રેકની બાજુમાં આ રીતે માસ્ટ હોય છે, બરાબર. તો જે સબસ્ટેશનમાંથી 25 kV આવ્યો ને તે આવીને આ રીતે અહીંયા ઉપર કનેક્ટ થાય. માસ્ટના ઉપરના આ સીટીપીટી રોડ છે, ક્રોસ ટ્યુબ, બ્રેકેટ ટ્યુબ. તો બ્રેકેટ ટ્યુબના ઉપર કનેક્ટ થાય અને ત્યારબાદ ત્યાંથી દરેક થાંભલા પર આ રીતે સેટ થતો જાય. દરેક માસ્ટના ઉપર એન્કરિંગ થઈને આ રીતે આગળ વધી જાય. તો આ જે ઉપરનો વાયર છે એને કહેવાય છે કેટેનરી વાયર. કેટેનરી વાયર એ આટલો જાડો હોય છે અને ઘણા બધા કોપરના વાયરમાંથી બનેલો હોય છે, એટલે ફ્લેક્સિબલ છે, સોલિડ નથી, ફ્લેક્સિબલ છે. એને કહેવાય છે કેટેનરી વાયર. કેટેનરી વાયર પછી નીચે આજે માસ્ટર સ્ટેડિયમ છે, સ્ટેડિયમમાંથી એક ડાયરેક્ટ વાયર જ્યાં સીધો જશે એને કહેવાય છે કોન્ટેક્ટ વાયર. પેન્ડુલમ જે છે તે કોન્ટેક્ટ વાયરને ટચ થઈને ચાલે. કોન્ટેક્ટ વાયર આટલો જાડો હોય છે, સોલિડ હોય છે, એનું મટીરિયલ છે કેડમિયમ કોપર. કેટેનરી વાયર ફ્લેક્સિબલ છે, કોન્ટેક્ટ વાયર સોલિડ છે, મટીરિયલ છે કેડમિયમ કોપર. અને અહીંયાથી ડ્રોપરના થ્રુ એને હેંગ કરેલો હોય છે. ધીઝ આર ધ ડ્રોપર્સ. ડ્રોપરના થ્રુ એને હેંગ કરેલો હોય છે, પણ સપ્લાય જે છે તે ફ્લેક્સિબલ એસ જમ્પર યા તો સી જમ્પરના થ્રુ કોન્ટેક્ટ વાયરમાં આવે. સપ્લાય તો લાવવો પડે. ડ્રોપર છે એટલે મેકેનિકલ હેંગિંગ, એ તો કંઈ બીજો યુઝ નથી, ઓનલી મેકેનિકલ હેંગિંગ, બરાબર. પણ સપ્લાય સી જમ્પર અથવા એસ જમ્પરના થ્રુ કોન્ટેક્ટ વાયરમાં આવે.
આ જે સપ્લાય આવ્યો તે પેન્ટોગ્રાફ કલેક્ટ કરશે સપ્લાયને અને અંદર આપશે મેઇન ટ્રાન્સફોર્મરને આપશે. મેઇન ટ્રાન્સફોર્મર ગ્રાઉન્ડ કરેલું છે એન્જિનની બોડી સાથે અને બોડી જે છે એનો જે સપ્લાય જે છે રિટર્ન કરંટ પૈડામાં ઉતરશે. પૈડા જે છે ટ્રેકમાં પર ગોઠવેલા છે. હવે આ ટ્રેક રેલવેની ટ્રેક અને આ માસ્ટ એ બેની વચ્ચે આ રીતે એક પટ્ટી મૂકેલી છે. લોખંડની પટ્ટી કનેક્ટેડ તમે જોઈએ ઓમેગા ટાઈપની પટ્ટી છે. એને ગ્રાઉન્ડ કરેલી છે માસ્ટની સાથે કારણ કે માસ્ટ તો ગ્રાઉન્ડ છે જ. એટલે આને હવે રિટર્ન કરંટ કેવી રીતે સર્કિટ કમ્પ્લીટ કરી દઈયો 25 કેવી ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી આવ્યો સિંગલ ફેઝ કેટનરીમાં ગયો ત્યાંથી કોન્ટેક્ટ વાયરમાં આવ્યો એન્જિનમાં યુઝ થયો ટ્રેકમાં ઉતર્યો માસમાં આવ્યો માસમાંથી ગ્રાઉન્ડ થઈને જે સબસ્ટેશનમાં બીજો છેડો ગ્રાઉન્ડ કરેલો ને એની સાથે અર્થના થ્રુ સર્કિટ કમ્પ્લીટ કરે. આ રીતે સિંગલ ફેઝ સર્કિટ કમ્પ્લીટ થાય છે એન્જિન લોકોમોટિવ. આ સિવાય ટ્રેકને બી દર 1 કિલોમીટર સ્પેશિયલ અર્થિંગ સ્પીડ આપીને ગ્રાઉન્ડિંગ આપેલું છે. ટ્રેકનું પોતાનું બી ગ્રાઉન્ડિંગ અર્થિંગ સ્પીડ આપેલું છે. દર 1 કિલોમીટરની અંદર 1 ફીટ આપેલું છે. ખ્યાલ આવી ગયો? કેટનરી વાયર, કોન્ટેક્ટ વાયર, માસ્ક. હવે આ જે માસ્ક છે એના ઉપર આ જે નંબર લખેલો છે એ ચર્ચગેટથી મુંબઈથી તમારું આ સ્ટેશન યા જગ્યા કેટલા કિલોમીટરથી છે? ભરૂચના ઉપર આ 334 હશે. ચર્ચગેટ 0 કિલોમીટર, બોમ્બે મુંબઈ સેન્ટ્રલ 4 કિલોમીટર, બાંદ્રા 13.2, અંધેરી 21, બોરીવલી 34, વિરાર 60, પાલઘર 90, બોઈસર 101, બરાબર, દાદોદર 124, 171 વાપી, 119 વલસાડ, બરાબર, 233 જે છે તે નવસારી, 266 સુરત અને 334 કમાતું. આ રીતે 395 વડોદરા, 495 અમદાવાદ, 500 કિલોમીટર મુંબઈ. અને તમે કહેશો આ નંબર તમે કેમ યાદ છે? આ નંબર એટલા માટે મને યાદ છે કે રાતના એન્જિનમાં ફોલ્ટ આવે, રાતના કે દિવસના તમે ફોલ્ટ આવે તો ડ્રાઈવર જ્યારે કહે કે મારે આ ફોલ્ટ મને ડિસ્પ્લે પર બતાવે છે ત્યારે મારો ક્વેશ્ચન પહેલો એને ફર્સ્ટ આ જ રહેશે કે માસ નંબર કયા પર તું ઉભેલો છે. એટલે માસ નંબર 334 કે તમારે ખ્યાલ આવે કે ભરૂચ પર ઉભેલો છે. પણ એન્જિનમાં બે ટાઈપના ફોલ્ટ થાય. એક તો રનિંગ એન્જિનનો ફોલ્ટ અલગ અને ન્યુટ્રલ સેક્શનમાં તમે શટડાઉન લો, ન્યુટ્રલ સેક્શન આવતા પહેલા આખું એન્જિનનું શટડાઉન લો અને ફરીથી રિસ્ટાર્ટ કરો ત્યાંના ફોલ્ટ જુદા હોય. તો અમને ખ્યાલ આવી જાય કિલોમીટર બોલે એનાથી ખ્યાલ આવી જાય કે ન્યુટ્રલ સેક્શન પછીનો એ ફોલ્ટ બતાવી દેલો છે કે રનિંગનો ફોલ્ટ બતાવે છે. તો રાતના 2 વાગે પણ અમને ઉઠાડે, અમને સેટેલાઇટ ફોન આપેલા હતા, ડાયરેક્ટ ડ્રાઈવર અમારી સાથે ઘેરે વાત કરી શકે અને એ પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરે કે મને જે પણ ડિસ્પ્લેમાં આવે છે ફોલ્ટ એ ફોલ્ટના ડિસ્પ્લે પ્રમાણે દે હેવ ગોટ PhD એક બુક હોય છે ટ્રબલ શૂટિંગ ડિરેક્ટલી. એ ફોલ્ટ એની અંદર લખેલા હોય છે, એની સામે શું કરવાનું એ પણ લખેલું હોય છે. એ બધું કરીને થાકી જાય અને છતાં ફોલ્ટ ક્લિયર નહીં થાય તો એ અમને ડિસ્ટર્બ કરે, અદરવાઇઝ દે ડોન્ટ ડુ. ઓકે. અને આ બધું માટે ફોલ્ટ ક્લિયર કરવા માટે એમને અમે 20 મિનિટનો ટાઈમ આપ્યો. 20 મિનિટમાં યા તો એણે ફોલ્ટ ક્લિયર કરવાનો યા તો નજીકના સ્ટેશન માસ્ટરને યા કંટ્રોલરને ઇન્ફોર્મ કરવાનું કે મારા એન્જિનમાં ફોલ્ટ આવ્યું છે અને એના લીધે હું અહીંયા ઊભો રહી ગયો. કેમ? કોઈ બી ટ્રેન એક સ્ટેશનથી નીકળે બીજા સ્ટેશનને ઇન્ફોર્મ કરે, એક સ્ટેશન માસ્ટર બીજા સ્ટેશન માસ્ટરને કે મારે અહીંયાથી બીજા ટ્રેન નીકળી. હવે બીજો સ્ટેશન માસ્ટર બહાર આવીને ઊભો રહી છે બીજા ટ્રેનની રાહ જોવા માટે. સપોઝ વી હેવ ગિવન અંકલેશ્વર અને આનો જે છે અમે 5.5 મિનિટ રનિંગ ટાઈમ આપ્યો છે. અંકલેશ્વર ટુ ભરૂચ દરેક ડ્રાઈવરની બુકની અંદર રનિંગ ટાઈમ હોય છે, એની સ્પીડ હોય છે. વંદે ભારતનો જુદો છે, અગસ્તાનજીનો જુદો છે, બરાબર, ગરીબ રથનો જુદો છે, લોકલ ટ્રેનનો જુદો, દરેકના ટાઈમ જુદા જુદા હોય. એ
મેઇલ એક્સપ્રેસનો ટાઈમ કેટલો છે તો 5.5 મિનિટ કે 6.5 મિનિટ જે પણ ટાઈમ હોય એ પ્રમાણે એટલી મિનિટમાં એ ટ્રેન નહીં દેખાય કે નહીં પહોંચાય તો માસ્ટરને ખ્યાલ આવી જાય કે કંઈ પણ ટ્રેન સાથે દુર્ઘટના થઈ છે એટલે તરત જ કંટ્રોલર કહીને વિસલ વગાડવું. પેસેન્જર ટ્રેન હોય તો 5 વિસલ વાગે કે જેનાથી આખી જે રિલીફ ટ્રેન આવે એક્સિડન્ટ રિલીફ ટ્રેન એમાં ડૉક્ટર્સ હોય, ઓપરેશન થિયેટર હોય, નર્સિસ હોય, કમ્પાઉન્ડર હોય, કારણ કે વી ડોન્ટ નો કે શું થયું છે ટ્રેન સાથે. તો તરત જ રાતના ટાઈમમાં 45 મિનિટમાં એ ટ્રેનને સ્ટેશન છોડી દેવાનું અને દિવસના ટાઈમમાં 40 મિનિટમાં સ્ટેશન છોડી દેવાનું એક્સિડન્ટ સાઇટ પર જવા માટે. ઓકે, અને કલ સ્ટાફ કેટલા વાગે આવે બધાને હજીને ટાઈમિંગ નોટ થાય. એટલું ઇમરજન્સી લેવલ પર એ કામ થાય, કારણ કે જેટલું મોડું પહોંચે એટલી કેઝ્યુલિટી વધે. જે ઇન્જર્ડ હોય ધીરે ધીરે બધા કેઝ્યુઅલમાં રિફોર્મ થતા જાય. તો એવું નહીં થાય એટલે બને એટલે વહેલામાં વહેલી તકે એક્સિડન્ટ ટ્રેન જે છે તે ત્યાં અમે લઈ જવાની કોશિશ કરીએ. ઓકે, તો કેટનરી વાયર, કોન્ટેક્ટ વાયર નાનો ખ્યાલ આવ્યો. ટ્રેક્શન કઈ રીતે એને મળે છે. હવે જે છે આપણે પાવર સર્કિટ 25,000 વોલ્ટ કોન્ટેક્ટ વાયરના થ્રુ પેટ્રોગ્રાફને તો મળી ગયો. આગળ એ સપ્લાયનું શું થાય છે તે જોઈએ. પેન્ટોગ્રાફ જેવો રેસ કરે 25,000 વોલ્ટ પેન્ટોગ્રાફની અંદર આવી જાય. એન્જિનના રૂફની ઉપર સર્કિટ બ્રેકર છે. એ ક્લોઝ થાય એટલે સપ્લાયની અંદર મેઇન ટ્રાન્સફોર્મરમાં આવે. મેઇન ટ્રાન્સફોર્મરનો બીજો છેડો એન્જિનની બોડી સાથે ગ્રાઉન્ડ કરેલો છે ટેન્કમાં. 25,000 વોલ્ટ સર્કિટ બ્રેકર ક્લોઝ થાય એટલે એન્જિનની અંદર દાખલ થાય, મેઇન ટ્રાન્સફોર્મરમાં જાય અને બીજો છેડો ગ્રાઉન્ડ કરેલો છે. એ ગ્રાઉન્ડના થ્રુ પૈડાના થ્રુ સર્કિટ સબસ્ટેશનમાં કમ્પ્લીટ કરે. આ જે છે ટ્રાન્સફોર્મર એને ટેપિંગ કાઢેલા છે, 32 ટેપિંગ છે. कोई हिंदी भाषी जिसको गुजराती नहीं समझ में आता हो, हिंदी वालों को भी सबको आप हिंदी अच्छा ठीक. तो ये जो मेन ट्रांसफॉर्मर है अभी तक का समझ में आया. जो मेन ट्रांसफॉर्मर है उसको 32 टेपिंग्स निकाले हुए हैं. ये सारे टेपिंग जो है कॉन्टेक्ट रिंग के थ्रू ऑन-लोड टेप चेंजर में जाता है. ऑन-लोड टेप चेंजर में जाता है और वहां से बाहर निकल के अगेन प्राइमरी बन के ट्रांसफॉर्मर की बॉडी के अंदर ही आता है. इसी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में हर एक टेप पे 24 वोल्ट मिलेंगे. फर्स्ट टेप पे 24, सेकंड पे 48, 72, 96, इस प्रकार 24 वोल्ट बढ़ते जाएंगे. वो जो 24 वोल्ट है वो आउटपुट में फुल वेव रेक्टिफायर को मिलेंगे. फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में बनाएगा और फिर भी उसमें जो एसी के रिपल्स बन जाते हैं उसको चौक कॉइल के थ्रू फिल्टर करेगा. 2 रेक्टिफायर है और ये जो आउटपुट मिला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसके बीच में ट्रैक्शन मोटर्स लगी हुई है. ट्रैक्शन मोटर का ये आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग है, मगर ये फील्ड वाइंडिंग डायरेक्ट नहीं है, बीच में है फॉरवर्ड रिवर्स स्विच. क्यों, जो ट्रेन बॉम्बे गई उसको रिटर्न भी आना है. रिटर्न कब आएगी, जब मोटर उल्टी चलेगी.
तो उल्टी चलाने के लिए फॉरवर्ड रिवर्स स्विच के थ्रू हम लोग स्टेटर वाइंडिंग का करंट को रिवर्स करते हैं। जाते हुए फॉरवर्ड में डालते हैं, रिटर्न में स्टेटर वाइंडिंग का करंट को रिवर्स करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स स्विच के थ्रू। इंजन में टोटल 6 पहिए हैं, आगे के 3 पहिए पे मोटर लगी है 3, और दूसरे रेक्टिफायर के थ्रू पीछे वाले 3 पहिए पे भी 3 मोटरें लगी हुई है। मोटर को सप्लाई जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर के थ्रू दिए गए हैं। आपके पुराने उसमें कभी कभी मोटर को सीरीज पैरेलल करने की जरूरत पड़ती थी, वो अभी नहीं है। अभी सारी मोटर पैरेलल में चलती है। वो कब जरूरत पड़ती थी कि पुराने टाइम में दिल्ली से जो राजधानी ट्रेन आती थी और उसका इलेक्ट्रिक इंजन आता था, बॉम्बे में विराट तक उसको 25,000 वोल्ट मिलते थे, और विराट से आगे 1500 वोल्ट डीसी बॉम्बे तक पूरा। तो हमारे पास जो इंजन थे वो एसी डीसी इंजन थे। विराट तक एसी पे चलेगा, विराट के बाद में हम लोग एसी पेंटोग्राफ डाउन करके डीसी पेंटोग्राफ रेज करके डीसी की सर्किट बनती थी और इस प्रकार बॉम्बे तक जाते थे। मगर 5 फरवरी 2012 के बाद में पूरा सेक्शन जो है एसी हो गया, और बॉम्बे की लोकल ट्रेन और हमारे इंजन सभी 25,000 वोल्ट पे चलते हैं। इसलिए अब जो मोटर को सीरीज पैरेलल जो करना था वो अब नहीं करना पड़ता है। फिर भी अभी ये जो कॉन्टेक्टर है ऊपर नीचे के, ये अगर हम खोल दें तो मोटर में फॉल्ट आता है, तो मोटर को सर्किट से हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पार्ट, ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगी। ट्रैक्शन मोटर कैसे दिखती है, ये क्या है, कैसे पहिए में लगा हुआ है, तो समझ में आ गया किस प्रकार। लेकिन ये थियोरेटिकल इतना अगर किया, 25,000 वोल्ट पेंटोग्राफ टच हो गया, सर्किट ब्रेकर क्लोज हो गया, ऑन लोड टेप चेंज जैसे टेप मैंने सिलेक्ट कर लिए, 24, 48, 72 वोल्ट आ गए, डीसी बन के मोटर को मिल गई, मोटर चलने लगेगी, इंजन की वो होगा। थियोरेटिकली ये ठीक है, मगर इंजन इतने से नहीं चलता। इंजन के ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं ना, वो न्यूमेटिक सप्लाई पे होते हैं। पेंटोग्राफ रेजिंग, सर्किट ब्रेकर क्लोजिंग, इंजन और ट्रेन में ब्रेकिंग, ये सारी सिस्टम न्यूमेटिक एयर सप्लाई से होती है। अब न्यूमेटिक एयर प्रेशर 8 से 10 केजी लाएंगे कहाँ से इंजन में, तो क्या होता है कि इंजन के अंदर हमने 3 फेज की मोटरें लगा के रखी है जो आपका कंप्रेसर चलाएगी, और कंप्रेसर से टंकी भरेगी। अब आप बोलेगे 3 फेज कहाँ से आया इंजन में, आता है तो सिंगल फेज, 3 फेज कहाँ से आया, तो 3 फेज हम लोग इंजन के अंदर ही जनरेट करते हैं। वो कैसे करते हो देख लो। ये जो मेन ट्रांसफार्मर है उसी का और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है TFWA, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। जब मेन वाइंडिंग में 25,000 वोल्ट आएंगे तो ये जो वाइंडिंग है ये 400 वोल्ट आउटपुट देगा फिक्स, इसमें कोई डैपिंग नहीं है, 400 वोल्ट फिक्स आउटपुट देगा। ये जो आउटपुट है एक स्टार बाउंड आर्नो कन्वर्टर है, स्टार बाउंड आर्नो कन्वर्टर है। ये आर्नो कन्वर्टर क्या है, ज्योति लिमिटेड बड़ौदा में कंपनी होकर वो बनाती है, ये देखने को मिलेगा आपको। आर्नो क्या करता है, 2 फेज तो लेगा यहाँ से, मगर ये तो 3 फेज वाला सिस्टम है, 2 फेज से चलेगा नहीं। इसलिए क्या होता है, तीसरा फेज जो है टेम्पररी 2 सेकंड के लिए हम लोग ब्रीडिंग करके टाइमर से इसको देते हैं। जैसे 3 फेज मिल गए, ये घूमने लगेगा, और जैसे घूमने लगेगा ये फेज ओपन हो जाएगा, और ये आर्नो खुद जो है 3 फेज आउटपुट देगा 50 हर्ट्ज पे, और ये जो 3 फेज मिलेगा उसी से ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए जो पंखा चलाते हैं 35 हॉर्स पावर की 3 फेज मोटर है, तो वो कंप्रेसर की 25 हॉर्स पावर की मोटर है, कंप्रेसर चलाने के लिए।
ट्रांसफार्मर का ऑयल सर्कुलेशन का पंप है, वो भी 3 फेज की मोटर थी जाती है। तो ऐसी 12 से 15 जो 3 फेज की ऑक्सिलरी मोटर है, वो सारी किस पे चलती है? आर्नो कन्वर्टर पे। इसकी कैपेसिटी है 180 केवीए, 180 केवीए का कैपेसिटी। और ट्रैक्शन मोटर जो है ना, डीसी सीरीज मोटर, मगर आपका कोर्स का अभी भी पुराना ही चल रहा है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है पिछले 10-15 साल से, डीसी सीरीज मोटर बहुत फॉल्ट देती थी और 6 पोल डीसी मोटर थी, ब्रशेस लगते थे कार्बन ब्रश, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा था और 15-750 वोल्ट की मोटर थी, इंसुलेशन भी बहुत तगड़ा लगाना पड़ता था, बहुत बल्कि थी मोटर। तो ये मोटर सब अभी हम लोग ने फेड आउट कर दी और ट्रैक्शन मोटर की जगह पे डीसी सीरीज की जगह पर अब एसी इंडक्शन मोटर आ गई। मोस्टली सभी इंजन में एसी 3 फेज की इंडक्शन मोटर आ गई। उसका मैं एक छोटा सा ये बता दूं वो कैसे चलाते हैं। ये जो है रेक्टिफायर, ये सारा निकल जाएगा और इधर इन्वर्टर आ जाएगा। इन्वर्टर के अंदर बड़े बड़े आईजीबीटी लगे हुए हैं। आईजीबीटी के थ्रू पीडब्ल्यूएम मेथड से पल्स विड मॉड्यूलेशन, ये मेथड से 3 फेज की मोटरों को सप्लाई दिया जाएगा। ट्रैक्शन मोटर 3 फेज आउटपुट का जो है पीडब्ल्यूएम मेथड से हम लोग फायरिंग एंगल चेंज करते हैं, उस हिसाब से वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा। वो बढ़ा हुआ या घटा हुआ वोल्टेज किसमें जाएगा? 3 फेज की इंडक्शन मोटर में जाएगा और मोटर या तो स्पीड अप होगी या स्पीड डाउन, एक्सीलेट करेगी या रिटार्ड करेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। और इसमें ये जो है अभी आजकल के इंजन में ये लगा हुआ है इन्वर्टर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें हवाई जहाज एरोप्लेन में देखा ना, छोटा इस प्रकार का जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से चलेगा। अभी मथुरा में ट्रेन चल रही थी ऊपर, उसमें क्या हुआ था, वो दूसरा ड्राइवर आया, उसने अपना बैग रख दिया उसके ऊपर, तो जॉयस्टिक ऑन हो गया, आगे खिसक गया, तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली और प्लेटफॉर्म भी चढ़ गई बराबर। तो ये जो है नए इंजन में 3 फेज इंडक्शन मोटर है और उसको जो है आईजीबीटी के थ्रू इन्वर्टर के थ्रू हमने 3 फेज का सप्लाई देके इस प्रकार 3 फेज की मोटर चला रहे हैं। तो समझ में आ गया आर्नो कन्वर्टर किस प्रकार 3 फेज जनरेट करता है और इसी 3 फेज से बहुत सारी जो है। अब मैं आपको एक सिंपल ऑपरेशन बताता हूँ कि इंजन के अंदर जो हाई वोल्टेज ऑपरेशन है वो ड्राइवर को करना है, मगर ड्राइविंग रेस पे हाई वोल्टेज नहीं आता। इंजन के अंदर 100 वोल्ट की बैटरी सेट लगी हुई है और बैटरी का कंट्रोल वोल्टेज ड्राइविंग रेस पे आएगा। छोटी छोटी स्विच ऑपरेट करेगा, उसी स्विच के थ्रू पेंटोग्राफ भी क्लोज होगा, ऑन रोड टेप चेंजर भी ऑपरेट होगा, सर्किट ब्रेकर भी क्लोज होगा। ये सारे ऑपरेशन वो स्विच के थ्रू होंगे। ठीक है, वो कैसे होता मैं बता दूं आपको। जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव 100 वोल्ट आया बैटरी के थ्रू, वो ड्राइवर को जब पेंटोग्राफ रेस करना है तो एक की डालेगा वो इसके अंदर, चाबी डाल के उसको थ्रो करेगा। जब थ्रो करेगा तो नीचे इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनेगा और ये सप्लाई आगे जाएगा। ये सप्लाई आगे जाके एक सोलेनॉइड कॉइल में जाएगा और उसके आर्मेचर को एक्टिवेट करेगा। समझ में आ गया? ड्राइवर को पेंटोग्राफ रेस करना है, पेंटोग्राफ तो 25,000 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, मगर ड्राइवर करेगा 100 वोल्ट पे ऑपरेशन। वो सॉकेट जो है पेंटोग्राफ का डायरेक्ट रेस में, उसमें ये की डालेगा
उसको घुमाएगा तो नीचे इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनेगा, उसके थ्रू सॉलिनॉइड कॉइल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल वो एक्टिवेट होगी। अब इंजन के अंदर नीचे जो टंकी भरी हुई है न्यूमेटिक प्रेशर से, वो टंकी ऐसी है, आप स्कूटर में जो हवा डलवाते हो ना कंप्रेसर से, ऐसी टंकी में से एयर का सप्लाई आता है इस वाल्व के अंदर, मगर ये सप्लाई आगे जाएगा नहीं। जैसे ड्राइवर ये स्विच को थ्रो करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ही ये वाल्व खुलेगा, और ये वाल्व खुलेगा तो ये एयर सप्लाई जो है ये पिस्टन और सिलेंडर के अंदर जाएगा, और वहां से ये पिस्टन को धक्का मारेगा कि जिसके थ्रू ये लीवर ऑपरेट होगा, और पेंटोग्राफ जो है आपका रेज हो जाएगा। समझ आ गई? ड्राइवर कभी भी हाई वोल्टेज का ऑपरेशन अपने डायरेक्ट बेस पे करेगा, मगर कंट्रोल वोल्टेज से करेगा। अगेन ये अगर ड्राइवर को पेंटोग्राफ रेज करना है, उसके सॉकेट में की लगाएगा, उसको घुमाएगा, नीचे कांटेक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल पिकअप होगी, उससे वाल्व पिकअप होगा, टंकी में से जो एयर सप्लाई जो अभी तक यहाँ रुका हुआ था अब आगे बढ़ेगा, पिस्टन को धक्का मारेगा, लीवर को चलाएगा, इससे पेंटोग्राफ रेज होगा। जब ये वापस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी, पेंटोग्राफ वापस डाउन। सेम प्रिंसिपल में ऑन द टेप चेंज या सर्किट ब्रेकर सब ऐसे ही चलते हैं। कंट्रोल वोल्टेज ड्राइविंग रेस में अगर 25,000 वोल्ट आया तो पूरी ड्राइविंग रेस जल जाएगी, इतना हाई वोल्टेज थोड़ी देर में नहीं ला सकते, ठीक है? इसलिए कंट्रोल वोल्टेज सही दिया होता है। अभी इंजन के अंदर हमने 3 फेज की मोटर चला के कंप्रेसर से नीचे जो 5 टंकी है वो सब भर दी, फुल प्रेशर 8 से 10 केजी एयर प्रेशर पे भर। वही प्रेशर का उपयोग हमने किया ब्रेकिंग के लिए, पेंटोग्राफ मेजरिंग के लिए किया, सर्किट ब्रेकर क्लोजिंग के लिए किया, ऑन टेम्परेचर किया, सभी में ये न्यूमेटिक प्रेशर का ही उपयोग किया। अब ट्रेन तो चल पड़ी, उसको स्टॉप करना तो कैसे करें? हम रिटार्डेशन कर देंगे, ट्रैक्शन जीरो कर देंगे कंट्रोलर से, तो ट्रैक्शन जीरो हो जाएगा मगर ट्रेन तो चलती रहेगी। साइकिल का पेडल मारना बंद कर दे, फिर भी साइकिल तो मोशन में है, चलती रहेगी। तो चलती गाड़ी को रोकने के लिए हमें ब्रेकिंग की आवश्यकता है। तो आप ब्रेकिंग कैसे करोगे? तो ब्रेकिंग 2 टाइप के हैं इंजन के अंदर। एक तो कन्वेंशनल ब्रेकिंग है, इसमें 2 है, वैक्यूम ब्रेक और एयर ब्रेक। आज से 20 साल पहले लाल कलर के जो कोचिस आते थे वो सब वैक्यूम ब्रेक वाले, और 20 साल आखिरी 20 साल में जो ये कोच आ गए ब्लू वाले वो सब एयर ब्रेक है, 3 पाइप है, 2 पाइप है। पुराने में क्या था, लाल डिब्बों में इंजन के अंदर एक एग्जॉस्टर था जो वैक्यूम जनरेट करता था, और 56 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लेवल जितना वैक्यूम जनरेट होता था। वो इंजन में जो वैक्यूम जनरेट होता था वो सब काली पाइप के थ्रू सब कोच के नीचे जाके गार्ड के डिब्बे तक जाता था वैक्यूम। अब जब वैक्यूम वहां तक पहुंच गया है तो हर एक कोच के नीचे एक वाल लगा रहता था, ये वाल जो है वैक्यूम से लिफ्टेड रहते थे। मगर जब भी ड्राइवर ब्रेक लगाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, उसका ब्रेक वाल से वो क्या करेगा, वैक्यूम को डिस्ट्रॉय करेगा, हवा में एटमॉस्फेरिक एयर दाखिल करेगा। तो जैसे एटमॉस्फेरिक एयर दाखिल हो जाएगी तो ये सब कोच के नीचे वैक्यूम का जो सेंसिंग है वो कम हो जाएगा, तो ये जो वाल ऑपरेट होकर नीचे आ जाएगा और लीवर ऑपरेट होगा, तो लीवर के थ्रू ब्रेक वाल जो है वो पहिए के ऊपर जाके लग जाएगा। समझ में आ गया? वैक्यूम है तब तक ब्रेक रिलीज है, जैसे ड्राइवर वैक्यूम को डिस्ट्रॉय करेगा एटमॉस्फेरिक जगह
तो वैक्यूम ड्रॉप होगा। वैक्यूम ड्रॉप होगा तो हर एक कोच के नीचे वाल्व जो है वो ऑपरेट हो जाएगा और लीवर के थ्रू पहिए के ऊपर ब्रेक अप्लाई करेगा। ये उन दिनों की बात है जब ट्रेन की स्पीड बहुत कम हुआ करती। गुड्स ट्रेन में 60 किलोमीटर और मेल पैसेंजर में 90 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड। आज की तारीख में हम लोग वंदे भारत, गरीब रथ, दुरंतो, अगस्त क्रांति, स्वराज एक्सप्रेस 130 में दौड़ा। उन दिनों स्पीड कम थी तो ये चल जाता था। अब क्या होता था, कोई ट्रेन है जिसको लोकल ट्रेन है, हर स्टेशन रुकना है, तो ये वैक्यूम ब्रेक इतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि लीवर ऑपरेटेड थी। तो जैसे अंकलेश्वर से कोई ट्रेन निकली और उसको भरूच रुकना है क्या, तो जो भी किलोमीटर, उस किलोमीटर में भरूच रुकने के लिए उसको रास्ते में 3 बार ब्रेक लगानी पड़ेगी। एक बार ब्रेक अप्लाई किया, 30-35 सेकंड पकड़ के रखी, फिर छोड़ा, फिर ब्रेक अप्लाई किया, फिर छोड़ा, फिर ऐसे 3 या 4 बार कर ले तो आके भरूच में आके स्टॉप सिग्नल पे आके इंजन रुकेगा, नहीं तो वो शीट होगा। तो आप समझ लो कि सिर्फ अंकलेश्वर से भरूच के बीच में उसने 3 बार ब्रेक अप्लाई किया 30-35 सेकंड का। तो जो ट्रेन जैसे विरमगाम पैसेंजर है जो मुंबई सेंट्रल से चल के विरमगाम जाती है और रास्ते में उसको 65 स्टेशन है, तो हर स्टेशन पे 1.5 मिनट 2 मिनट ब्रेकिंग में अगर ये खोएगा तो वहाँ जाते जाते गाड़ी 2 घंटा लेट हो जाएगी। ठीक है, और पुराने दिनों में चलता था। अभी नए टाइम में क्या हो गया, एयर ब्रेक है तो इंजन के अंदर से कंप्रेस्ड एयर जो है वो कोच के नीचे जाता है 2 पाइप के थ्रू। एक है एफपी और दूसरा है बीपी। बीपी पाइप में 5 केजी का प्रेशर है, एफपी में 6 केजी का ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप। अभी आजकल आप देखना हर कोच के बीच में 2-2 पाइप जाते हैं। पहले एक काली पाइप आती है, अभी 2-2 पाइप। कौन सी एक ब्रेक पाइप है, फीड पाइप। ब्रेक पाइप में जब तक 5 केजी प्रेशर है तब तक ब्रेक रिलीज है और ट्रेन चल सकती है। और जैसे बीपी का प्रेशर डाउन किया ड्राइवर ने, क्या हर एक कोच के नीचे जो वाल है उसने सेंस किया कि बीपी ड्रॉप हो रहा है, तो ये क्या करेगा, एक कॉर्ड खोलेगा और पिस्टन को धक्का मारेगा तो 3 केजी के प्रेशर से पहिए के ऊपर जाके डिस्क ब्रेक, साधारण डिस्क ब्रेक जो मोटरसाइकिल में डिस्क ब्रेक लगा दिए हम लोग ने, डिस्क ब्रेक को जाके पकड़ लेगा 3 केजी के प्रेशर। 8 पहिए हैं, हर एक साइड पे एक डिस्क ब्रेक है और इसका एप्लीकेशन इतना सॉलिड है कि कितना भी स्पीड में है, 130 भी है वंदे भारत, अगर उसको एक्सीडेंट पता चलेगा कि एक्सीडेंट होने वाला है, अगर वो इमरजेंसी ब्रेक लगाए तो 4 खंभे पे तो रुक जाए। 130 की स्पीड, इतना बड़ा लोड, इतना बड़ा मास, इतना बड़ा मोमेंटम, इनर्शिया, ये सब होते हुए भी इस ब्रेक इतनी पावरफुल है, मैक्सिमम 3 से 4 खंभे पे जाके गाड़ी रुक जाएगी। भले टक्कर लग जाएगा मगर जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम होगा। वैसे तो बची जाती है, अगर मानो हो भी गया ऐसे तो भी स्पीड इतनी कम हो जाएगी उसकी कि नुकसान बहुत कम होगा। तो समझ में आ गया, ब्रेकिंग, कन्वेंशनल ब्रेकिंग, वैक्यूम ब्रेक और एयर ब्रेक। एयर ब्रेक जो अभी के ब्लू कोच है वो सारे एयर ब्रेक वाले 3 पाइप लगे हो, 2-2 पाइप वहां तक जाएंगे। अभी आप बोलोगे स्टेशन मास्टर क्या करे, कोई भी ट्रेन पासिंग होने वाली है तो स्टेशन मास्टर झंडी लेके बाहर आता है, एक हाथ में ग्रीन झंडी, लाल झंडी नीचे, ठीक है, वो ड्राइवर के साथ आपस में हिलाएगा, ड्राइवर भी बाहर आएगा, आपस में ग्रीन झंडी हिलाएगा, रात को लाइट होगा ग्रीन, मगर ये झंडी बता के वो चला नहीं जाएगा, वो खड़ा रहेगा। जो भी ट्रेन पास होती है उसके पीछे देखेगा कहीं आग तो नहीं लगी है, धुआं तो नहीं निकल रहा, कोई हैंगिंग पार्ट तो नहीं है। ये काम है मास्टर का। वैसे ही सामने वाली एक पोर्टर है, वो भी सामने वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है उसी टाइम पे पासिंग ट्रेन के, वो भी उस वायु देखता है ट्रेन की
दो हिस्से हैं, ये वायु ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट वायु वो पोर्टर देखता है, वेस्ट वायु स्टेशन मास्टर देखता है। ये सब ट्रेन पूरी ओके है। अगर कुछ गड़बड़ है, ड्राइवर को तो नहीं पता चलेगा कि ये कोई चीज़ हैकिंग है या धुआं निकल रहा है। ड्राइवर तो अपना इंजन चलाएगा, उसको नहीं पता चलेगा। तो अगर कुछ गड़बड़ है तो मास्टर क्या करेगा, ग्रीन झंडी नीचे करके लाल झंडी ऊपर करेगा। तो जैसे गार्ड पास होगा तो गार्ड देखेगा लाल झंडी है, तो गार्ड खुद ब्रेक लगाएगा। ये उन दिनों की बात है जब वॉकी टॉकी नहीं दिए थे। आजकल हमने वॉकी टॉकी दे दिए तो सब लोग आपस में बात कर लेते हैं। अगर झंडी ना भी हिलाई तभी पता चल जाएगा। ड्राइवर को बोलेगा भाई 10वां कोच है, उसमें फायर लगी है, फेस्टिवल में आग लगी है, या जो है पीछे जो है बाद में कोच में लीक में से धुआं आ रहा है, क्या तुम गाड़ी कंट्रोल कर, तो ड्राइवर गाड़ी कंट्रोल कर लेगा। तो ये जो है ये सिग्नल एक्शन इज अ मस्ट, सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। तो ब्रेकिंग में कन्वेंशनल ब्रेकिंग, वैक्यूम एंड एयर ब्रेकिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि कोई ट्रेन जो है वो ढलान के ऊपर चढ़ गई, स्लोप के ऊपर, अब जब उसको नीचे उतरना है तो भले ड्राइवर ट्रैक्शन को जीरो कर देगा तो भी ट्रेन तो चलती रहेगी, और उसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। तो स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि ब्रेक अप्लाई करने में पहिए भी घिसेंगे, डिस्क ब्रेक भी घिसेगी और डिस्क भी घिसेगी, तो बहुत सारा नुकसान होता है, रेवेन्यू लॉस होता है रेलवे को। तो ये ना हो इसलिए क्या किया है रेलवे ने, इंजन के अंदर डायनेमिक ब्रेकिंग इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ब्रेकिंग में कन्वेंशनल ब्रेकिंग है, वैक्यूम ब्रेक, एयर ब्रेक, और दूसरा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में रियोस्टेटिक ब्रेकिंग या डायनेमिक ब्रेकिंग करेंगे, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये दो टाइप का ब्रेकिंग किया। अब क्या होता है, जो ट्रेन ढलान पे चढ़ गई अब उतर रही है क्या, अब ड्राइवर को इसको ब्रेकिंग करना है, वो कन्वेंशनल ब्रेकिंग यूज नहीं करेगा, उसमें एक लीवर लगा हुआ है, वो लीवर को वो रियोस्टेटिक ब्रेकिंग पे थ्रो कर देगा। तो क्या हो जाएगा कि ट्रैक्शन मोटर जो है उसका आर्मेचर है, उसको सप्लाई कट हो जाएगा, मगर जो उसका फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को रेक्टिफायर से सप्लाई मिलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, कोई मोटर पहिए के थ्रू, गियर के थ्रू, पहिए तो चल रहे हैं ना ढलान पे, तो पहिए चल रहे हैं, गियर चल रहा है, आर्मेचर भी घूम रहा है, मोटर का सप्लाई काट दिया, मगर मोटर का स्टेटर को हमने एक्साइट किया हुआ, तो ये मोटर क्या काम करेगी, अब जनरेटर का काम। जब भी मोटर जनरेटर का काम करेगी तो उस पर लोड आएगा, तो उसमें कौन सी इफेक्ट आएगी, बैक ईएम में ब्रेकिंग इफेक्ट आएगी, तो उससे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मोटर की स्पीड कम हो गई, पहिए की स्पीड कम हो गई, तो ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल हो गई। ठीक है, तो ये करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में आर्मेचर का सप्लाई कट गया, मगर रेक्टिफायर के थ्रू फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते रहे। ठीक है, अब यही मोटर तो घूम रही है पहिए के थ्रू, तो ये जनरेटर का काम करेगी, तो आर्मेचर जो आउटपुट देगा वो आउटपुट को हम रियोस्टेट में यूटिलाइज कर देंगे, ये लाल हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस जो है हैवी ड्यूटी रेजिस्टेंस है, ये का मतलब ये लाल हो जाएगा, तो एनर्जी इसमें यूटिलाइज हो गई, तो इसका ब्रेकिंग इफेक्ट आर्मेचर पे आएगा, आर्मेचर स्लो डाउन हो जाएगा, इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रियोस्टेटिक ब्रेकिंग या डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक है, दूसरा ब्रेकिंग है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या है
सेम सिस्टम है, मगर आर्मेचर का सप्लाई रियर स्टेट को देने के बजाय इसको वहां पर सर्किट ब्रेकर के थ्रू, पेंटोग्राफ के थ्रू ओवरहेड वायर को दे दिया जाता सप्लाई लाइन, इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग व्हाटएवर प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस, जो भी स्पीड रहेगी, जो भी मोमेंट है, जो भी आउटपुट देगा वो आउटपुट वापस किसको जाएगा, ओवरहेड वायर को जाएगा। तो इसको बोलेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। लेकिन इसमें भी आएगा, मोटर पे लोड इसमें भी आएगा, जो जनरेटर इसमें भी लोड आएगा, तो इसको बोलेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। समझ में आ गया? इंडियन या ट्रेन का ब्रेकिंग दो तरीके का, कन्वेंशनल ब्रेकिंग में वैक्यूम ब्रेक अभी नहीं, 20 साल से निकाल दिया। दूसरा ब्रेकिंग है एयर ब्रेक, बहुत ही इफेक्टिव, 130 की वंदे भारत की 4 खंभे पे जाके मिलते हैं। 1980 में मैं इधर था, होशंगाबाद में मेरा मुश्किल था, तभी 6 रात को 7 मिनट का एक्सीडेंट हुआ था, दिवाली के टाइम पे, नवरात्र दिवाली डाउन में, पुराने जमाने की बात, 1980 डाउन में एक गाड़ी निकली थी मियागाम से पहले स्टेशन से, और उसका वैक्यूम ड्रॉप हो गया। कार स्टेशन ड्राइवर नीचे गया देखने के लिए कि मैं कौन सी पाइप खुल रही है, देख के आता हूँ। देखने गया तो 15 डिब्बों के बाद में 4-5 डिब्बे उछल के ये लाइन पे गिरे हुए, अप ट्रेन पे। बॉम्बे से जो अहमदाबाद जाएगी उसको डाउन ट्रेन बोलते हैं, और अहमदाबाद से जो मुंबई जाएगा हेडक्वार्टर, अरे जोन का हेडक्वार्टर में जो ट्रेन जाती उसको अप ट्रेन बोलते हैं। अप और डाउन ट्रेन का ये फंडा है। जो भी है वेस्टर्न रेलवे का हमारा हेडक्वार्टर मुंबई में चर्चगेट है, तो चर्चगेट की दिशा में जो भी ट्रेन जाएगी उसको अप ट्रेन बोलते हैं, चर्चगेट से जो भी ट्रेन डाउन में निकलेगी उसको डाउन ट्रेन बोलते हैं। तो जब उसने देखा कि 3-4 डिब्बे जो है गुड ट्रेन के सामने वाली ट्रैक पे जा नहीं रहे हैं, वो दौड़ के आया वापस अंधेरे में। बहुत डिफिकल्ट रहता है ट्रैक के ऊपर दौड़ना, साइड में तो दौड़ना, तो रोड नहीं देता, गिट्टी के ऊपर दौड़ना। दौड़ के आया, उसने ड्राइवर को बताया कि अपना डिलेसमेंट हो गया है। अब उन दिनों क्या था कि आजकल वॉकी टॉकी कम नहीं थे, इंजन के अंदर इमरजेंसी हम लोग फ़ोन रखते थे, डिब्बे वाला बैटरी ऑपरेटर, वो फ़ोन को निकालने का, फिर आपका इंजन जहाँ खड़ा है ना वहाँ खंबे पे देखने का कि नियरेस्ट फोन सॉकेट कौन से खंबे पे, तो खंबे के ऊपर मार्क रहता है कि 5वें खंबे पे सॉकेट है, 4थे पे है, इस दिशा में नजदीक है, इस दिशा पर खंबे पे देख के भी लोड निकाला। वहाँ जाके उसने सॉकेट पे लगाया, और जब तक वो ट्यूशन मास्टर से बात करे तब तक सामने उसको 6 मिनट की लाइट दिख गई। अब ये जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ करने से नॉर्मली हम लोग को विजिबिलिटी रात को हमारी हेडलाइट की 1 किलोमीटर तक हम आराम से देख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर नहीं मिलती है, मगर 1 किलोमीटर तो साफ सुथरा दिखता है। रेलवे ट्रैक में कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है, या ट्रैक साफ है कि नहीं, सब दिखता है। मगर वो जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ गोलाई थी, तो विजिबिलिटी 150 मीटर ही बच जाती है, हर 150 मीटर के बाद नई विजिबिलिटी आती थी, नई विजिबिलिटी। तो इन लोग तो कुछ इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए, 6 वहाँ से स्टार्ट हो गया, 3-4 खंबे के बाद उसकी तो 90 की स्पीड आ गई, उस स्पीड उसने ले ली, और जैसा उसने कटिंग पास किया थे कहाँ के बाद सामने डिब्बे पड़े थे। यंतीलाल के ड्राइवर था, असिस्टेंट ड्राइवर था, दोनों ने मिलकर इमरजेंसी ब्रेक मारी, मगर 150 मीटर ही बचा था, 90 की स्पीड थी, तो स्पीड कंट्रोल इतनी नहीं, ठीक है। और जाके डैश हो गई, इंजन भी टक्कर लग के खेत में चला गया, वो भी 100 मीटर अंदर खेत में चला गया। उसके बाद का एक लगेज था कोच, वो और एक कोच, ये 3 कोच डैमेज हो गए। और कैजुअलिटी में वो सेकंड कोच था लगेज के बाद में, टॉयलेट में जो 2 पैसेंजर गए थे वो क्रैश हो गए, वहीं उनका डेथ हो गया। और एक लड़का, यंग लड़का जो दरवाजे में बैठा था, वो उछल के गिर गया, उसमें 3 टोटल कैजुअलिटी हुई थी। और मगर ये 90 से स्पीड इसकी घट के इमरजेंसी ब्रेक लगने के बाद भी वो जब डैश हुआ तो स्पीड टाइम चार्ट के थ्रू हम लोगों ने उसको स्टडी किया, तो 6 सेकंड के अंदर वो जो था 90 में से 35 में आ गया। वैक्यूम ब्रेक था तो भी इतना अच्छा था नहीं, अगर फुल स्पीड होती बहुत ज़्यादा डैमेज होती,
इसके और 3-4 कोच भी डैमेज हो सकते हैं और इसने काफ़ी कंट्रोल कर लिया। ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर दोनों मर गए जब इंजन काट के निकाला। दोनों का हाथ इमरजेंसी ब्रेक में था। दोनों ने कोशिश की थी ब्रेक को बचाने की, मगर विजिबिलिटी कम थी और डिस्टेंस भी कम बच गया था, इसलिए डैमेज होना था, कॉलिजन होना था, तो हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया अभी तक का जो भी मैंने किया। अब जो है हम लोग ने जो भी यहाँ स्टडी में देखा आपने बोर्ड के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रोजेक्टर के थ्रू आपको इस पर देखने को मिलेगी। और तभी भी मैं समझाऊंगा बीच बीच में, और उसके बाद में आधा घंटा अपना रहेगा क्वेश्चन आंसर। रेलवे से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है या आपके बुक में कुछ भी है, देखिए एक बात मैं बता दूँ, लेटेस्ट सीनेरियो रेलवे में क्या है, बहुत अपग्रेडेशन हो चुका है पिछले 10-15 साल से, मगर आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ। अभी भी वो पुराना ही डीसी सीरीज मॉडल, पुराना ही ट्रामवे सीरीज पैरेलल कॉन्ट्रैक्टर, डेट चाहिए पुराने टाइप का, वही सब अभी भी लिखा हुआ है। एनी हाउ यू हैव टू स्टडी दिस एंड गिव द एग्जाम, ठीक है, तो आपके लिए ठीक है। तो फिर भी आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है, मैंने जीटीओ को लिखा है, आपका जो है गांधीनगर को लिखा है कि भाई ये जो है बहुत पुराना है, पिछले 15 साल में रेलवे में बहुत सारा टेक्नोलॉजी चेंजेस आ गया है, इनोवेशन आ गया है, आप ये कोर्स को चेंज करो, ठीक है। ये आगे की लाइटें बंद कर देना। देखिए अब ये जो रहेगा प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आपने अब यहाँ जो भी देखा है, ट्रैक्शन मोटर, पेंटोग्राफ, क्या ऑपरेशन कैसे होता है, तो सब चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। ये लाइट भी बंद कर दो, इनको देखने को मिले, वो दरवाजा बंद कर दो, ये पेन ड्राइव लगा देना। The most suitable voltage for electrical traction, so they adopted that. If you adopt 60 kV, ઇન્સ્યુલેટર કેટલા મોટા મોટા લાગે, 25 kV માં આટલા છે, 60 kV માં કેટલા મોટા મોટા લાગે, સબસ્ટેશનની લંબાઈ વધી જાય, પણ ઓવરઓલ બધે એને જે સેવ કરવાનું 60 kV ને અર્થિંગના થ્રુ બચાવ કરવાનો, એના માટે દરેક ઠેકાણે ઇન્સ્યુલેશન લેવલ જે છે ને બહુ હાઈ ચાલુ જાય. એન્જિનની અંદર પણ 60 kV તમે લાવો તો હાઉ ટુ સેવ એને ડિસ્ચાર્જ ઇન્જિન તો બધી બાજુ અર્થિંગ છે, 60 kV ને પ્રોટેક્ટ કેવી રીતે કરો? હા 11 kV. See whatever type, see હવે તમે એમ કહો ઘરમાં 230 વોલ્ટેજ યુઝ કેમ? હા તો જે પણ એ લોકો ટ્રાયલ એરર કરીને જે મેક્સિમમ એફિશિયન્સી ઇલેક્ટ્રિકલ ગેજેટના થ્રુ દે ગોટ, and એના થ્રુ 25 kV at 50 Hz they found it suitable for electrical traction, and so they adopted this 25 kV. नीचे एक पीसी में चालू करेंगे ना ना कहीं जा सकते हैं आवाज पे ऑटोमेटिक ऑप्शन क्या ऑटोमेटिक वाला नहीं जाते सर પેલું સ્કેન એન્ડ ધેન એ તો હલો ફાઇલ તમારે એમાં લઈ લો, પછી તો ડિલીટ માં દો. एक मिनट सर एक જોઈ લે લેપટોપ છે લેપટોપ છે સર જરૂર પડી તો બાકી બે મિનિટ બેટા ચાલો ભૂલી જતું હા એટલે વાયરસ છે અંદર વાયરડી સી આમાં શું છે, ગ્રીડ સિસ્ટમ છે. સી આ ગ્રીડના ઉપર there are so many substation, બરાબર, અને તમને ખ્યાલ હશે 3 phase we have to balance the load. તો એક સેક્શનમાં 65 થી 70 કિલોમીટરની લાઈનમાં
there are number of trades working અને એનો જે લોડ છે એ અને બીજા વાય અને બી સેક્શનમાં બીજા સબસ્ટેશન લોડ it should get balanced. I cannot go continuous RY બધાને નહીં આપી શકો. ઇવન તમારા ઘેરે પણ સી ફેઝની લાઈન તમે નજીક આવો તારે ચાલશે HDMI મને પણ કંઈક શીખવા મળશે. આવો નજીક હા બોલો. સિમ્પલ થ્રી ફેઝ લાઈન છે તો તમે આર વાય વાય બી બી આર યુઝ કર્યા તો લોડ શેરિંગ માટે સ્કીમ છે આ ફેઝ પછી મોટર એક ડાયરેક્શનમાં ફરે છે પછી ફેઝ ચેન્જ થાય જ્યારે અત્યારે ડાયરેક્શન ચેન્જ નહીં થઈ જાય ઓ નો વી આર ये જે ફેઝ આવે છે એનાથી વચ્ચે there is a buffer વચ્ચે ગેજેટ કયું છે ટ્રાન્સફોર્મર છે એન્જિનની અંદર જે 25 કેવી લે છે ને સેકન્ડરીમાં એના ટેપિંગના થ્રુ વોલ્ટેજ આપે છે રેક્ટિફાયરના થ્રુ હા ઇનપુટ વોલ્ટેજ ઇનપુટ ખાલી પ્રાઇમરી સુધી જ છે હા સિંગલ ફેઝ જે તમારો આવ્યો ને બહારથી સપ્લાય એ ફક્ત મેઇન ટ્રાન્સફોર્મર થઈને ગ્રાઉન્ડ થઈ જાય ત્યાં પૂરતું જ છે અને એનો રિટર્ન લોકો બોડીના થ્રુ ટ્રેકના થ્રુ જઈને સબસ્ટેશનમાં રિટર્ન કમ્પ્લીટ કરે અર્થના થ્રુ એટલું જ એનું ફંક્શન ટ્રાન્સફોર્મર વચ્ચે આવી ગયું સેકન્ડરી સાઇડમાં સ્ટેપ ડાઉન થશે અલગ અલગ વોલ્ટેજ વધશે અને એ વોલ્ટેજ ડીસી બનાવીને મોટરને આપશે તો મોટર ઊંધી ફરવાનું સુધી સાહેબ મને ડાઉટ હતો કે જ્યારે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે આર વાય ને બી લીધા પછી ન્યુટ્રલ સર્કિટ છે આપણી હા બીજા બે ફેઝ લે એ બી આર થઈ ગયા એ અમને એ ટાઈમ હતું જ્યારે બી આર ચેન્જ થઈ ગયા તો એ વખતે ના ટ્રાન્સફોર્મર નથિંગ છે એમાં ચેન્જ થઈ થાય ટ્રાન્સફોર્મર જ્યારે આઉટપુટ આવશે ડીસી એનો પોઝિટિવ નેગેટિવ વિલ બી સેમ ના એસી સર્કિટ હા એસી ઓક્સિલરી ઓ એમાં પણ ટ્રાન્સફોર્મરમાં એક ઓક્સિલરી વાઇન્ડિંગ છે એના થ્રુ ફિક્સ 400 વોલ્ટ મળશે એમાં પેલા ફેઝના આને કઈ લેવા દેવાના ફિક્સ 400 વોલ્ટ મળશે જે આનો કન્વર્ટરના થ્રુ સી ફેઝ મળશે અને એના થ્રુ સી ફેઝની બધી ઓક્સિલરી મોડલ છે શું થયું વાયરસ છે પેન ડ્રાઈવમાં ફૂલ પેન ડ્રાઈવમાં હોય અહીંયાથી લાગ્યું ઘરની કોલ ના અહીંયાથી લાગ્યું શું કહ્યું એટલે અમે આમાંથી વાયરસ સ્કેન કર્યું છે અને કાઢી નાખ્યો પાછું આમાં નાખ્યું વાયરસ હતો અચ્છા વાયરસ ઓકે એટલે પીસીબી સ્લો એટલે થઈ રહ્યું છે ઓપન નથી થઈ રહ્યું આ લઘુ વાયરસ છે આમાં ઓપન થઈ જશે હેલો બીજી વસ્તુ એક યાદ રાખવાનું HDMI મને કન્વર્ટર છે ને એટલું મારા ગમ્યું ટેબલ એમણે બહુ ડેપ્થ ટેબલ લેવલનો છે જે મારા માટે પણ ચેલેન્જિંગ હતો એવો ક્વેશ્ચન કર્યો દરેકના મનમાં કઈ રીતે ક્વેશ્ચન થયો છે વાય ફેન ઇઝ આટલી હાઈટ પર કેમ એનો રોડ આટલો જ નાનો કેમ હજુ સુધી નીચે થઈ ગયું ને દરેક જીવનમાં જે પણ તમે જુઓ ને વાય ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ વાય ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ એ હંમેશા વિડિયો હોવું પ્લેયર છે ઓકે હા બધું છે અને બધું છે હું તમને કહું MP4 my age is 70 years હમણાં MP4 MP3 I have not stopped learning. Last month, always very good. Last month, I did my hypnotism from Bombay. Very fine minute. Last month, I did my hypnotism training from Bombay, Andheri. From last 7 years, I took diploma in acupressure. So now the patients from Bollywood and local public, they come for treatment. Okay. I have learned past life regression. પાછલા જન્મમાં જવું હોય, I can take you to past life regression also. I can hypnotize you to remove your anxiety, depression, anything. તો જીવનમાં ક્યારે પણ શીખવા માટે કોઈ પણ ઉંમરની રાહ નહીં. આમાંથી આવશે And whatever you learn,
you will get the benefit. બધી રીતે. I got one clinic at Andheri also, લોખંડવાલા. જ્યાં 4 લોકો રહી છે. એની બાજુમાં જ મારું ક્લિનિક છે. સર એ કેબલ નીચે છે. હમણાં લાસ્ટ મંથ માયા શેટ્ટી, she is the wife of Rohit Shetty. Director છે ને સિંગમ બનાવેલું. એની wife છે. She came with 4 friends. 4 બેનપણીને લઈને આવેલી મારી ક્લિનિક પર ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે. It's a good earning job also. ઘણા ડિપ્રેશન વાળા સ્મોકર્સ, ડ્રંકર્સ they come for de-addiction. આદત છોડાવવા માટે પણ આવે છે. યસ સર. Yes, sir, it is running. ઓકે ચાલો ફરી ચાલુ કરો. Yeah, good. મને જે પ્રમાણે જોવું હોય તો પેલા હું ચેન્જ કરતો 6 બોલથી ચાલુ કર. 6 પોલથી ચાલુ ભાઈ છોકરાઓ જો ભાઈ શાંતિથી જો આ લેક્ચર ઇન્ડસ્ટ્રી એટેન્ડ રહેશે, કરવો હલો, જરૂરી છે. આજે જોવા મળશે તમને આગળ એન્જિનમાં ક્યાં જોવા નહીં મળે. એન્જિનની અંદરની ડિટેલ શરૂઆતમાં જ્યારે આ જૂના અહીંયાના શિક્ષક હતા they got the benefit. એ લોકોની ટૂર આવતી હતી અમારે ત્યાં લોકો શહેરમાં અને વિઝિટ કરતા હતા. હવે ટૂર કોઈને આવતી નથી. બરાબર, એ પણ જોવા મળશે, અહીંયા મળશે. જો આજે છે ડીસી સિરીઝ મોટર 6 પોલ ડીસી સિરીઝ મોટર, બરાબર. એમાં આ મેઇન પોલ છે અને વચ્ચે કોમ્યુટેટર પોલ છે. વેરી બલ્કી બોડી, એકદમ હ્યુજ હેવી. એનું રેટિંગ છે 750 વોલ્ટ ડીસી, 690 એમ્પિયર, 1500 આરપીએમ. બરાબર, પણ આ છેલ્લા 15-20 વર્ષથી આ મોટર હવે યુઝ થતી નથી. હવે કઈ મોટર આવે છે? 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર. નેક્સ્ટ કરીએ. જો ધીસ ઇઝ ડાયમંડ પેન્ટોગ્રાફ. આ પેન્ટોગ્રાફ લો સ્પીડની ટ્રેનમાં વપરાતો હતો. હવે આ પેન્ટોગ્રાફ હાઈ સ્પીડની ટ્રેનમાં વપરાતો નથી. જૂની ટ્રામવે હતી ને, ટ્રામવે, તેમાં અને બોમ્બેની લોકલમાં આ પેન્ટોગ્રાફ વપરાતો હતો. લો સ્પીડ ટ્રેનમાં આ ડાયમંડ પેન્ટોગ્રાફ વાપરતા. નેક્સ્ટ. See, this is a telescopic pantograph જે હમણાં આજકાલ એન્જિનમાં અમે વાપરીએ છીએ. એના ટોપ પર અહીંયા રેઝિસ્ટન્સ પટ્ટી છે. સી ધીસ વન, આ રેઝિસ્ટન્સ પટ્ટી છે. અને બીજી વસ્તુ એ કહી દઉં કે ઓવરહેડ વાયર જે છે તે સીધો નથી હોતો. ઇટ ઇઝ સ્ટેગર્ડ. રેલવે ટ્રેકના સેન્ટરથી 19 સેન્ટીમીટર અહીંયા, 19 સેન્ટીમીટર અહીંયા વાંકો ચૂકો જાય છે. એને લીધે જ પેન્ટોગ્રાફ પર ઇક્વલ રબિંગ આવે. નહીં તો મુંબઈથી જે પેન્ટોગ્રાફ સ્ટાર્ટ થાય અમદાવાદ જતા 500 કિલોમીટરમાં વચ્ચે ખાંચો પડીને ટુકડા થઈ જાય. બટ ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. તો ઓવરહેડ વાયર સ્ટેગર્ડ. સ્ટેગર્ડનો મતલબ છે વાંકું ચૂકું. બરાબર, 19 સેન્ટીમીટર લેફ્ટ, 19 સેન્ટીમીટર રાઈટ. એટલે કમ્પ્લીટ પેન્ટોગ્રાફ 30 સેન્ટીમીટરમાં જે છે તે આખું રબિંગ થાય. અને જ્યારે ઉપરની રેઝિસ્ટન્સ પટ્ટી ઘસાઈ જાય, we just change the પટ્ટી અને પેન્ટોગ્રાફ ફરીથી નવો થઈ જાય. નેક્સ્ટ. See, this is the driving cap. ઓકે, જો ડ્રાઈવરનો એક હાથ હંમેશા ઇમરજન્સી બ્રેક પર હોય. રાઈટ ફ્રોમ વેરી ફર્સ્ટ ડે ડ્રાઈવરને એ શીખવવામાં આવે છે કે તમારે ઇમરજન્સી બ્રેક પરથી હાથ હટાવવાનો. ઓકે, તો ઇમરજન્સી બ્રેક પર એ હાથ છે, સામે ડ્રાઇવિંગ ડેશ છે, અને એનો લેફ્ટ હેન્ડ છે એ જે વ્હીલ પર છે, ઇટ ઇઝ નોટ એ સ્ટીયરિંગ વ્હીલ. એન્જિનમાં સ્ટીયરિંગ જેવું નથી હોતું. ડ્રાઈવર કેન નોટ ટર્ન ધ ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવ. બરાબર, ડ્રાઈવર શું કરી શકે? એન્જિનની સ્પીડ વધારે, ઘટાડે, એન્જિનને આગળ પાછળ અને બ્રેકિંગ. આટલા જ ઓપરેશન ડ્રાઈવરના હાથમાં છે. ટર્ન મારવાનું કામ પૈડાના થ્રુ ઓટોમેટિક થાય.
તમે જે બી પોઈન્ટ બનાવેલો હોય પાટાનો જોઈન્ટ બનાવેલો હોય પટરીના जो भी जॉइंट आपने बनाया है उस जॉइंट के हिसाब से ऑटोमेटिक टर्न लेके गाड़ी यार्ड में जा सकती है मगर ड्राइवर को स्टीयरिंग हिलाना नहीं ठीक है दैट नथिंग लाइक इट इज ए मास्टर कंट्रोलर नॉचिंग अप नॉचिंग डाउन करने के लिए नेक्स्ट देखिए ये ट्रैक्शन मोटर है उसके आर्मेचर के ऊपर छोटा सा गियर लगा है इसको जो है 21 तीस का ये गियर है ठीक है और ये गियर जो है पहिए के बड़े गियर के साथ में कपल होगा वो आगे देखने को मिलेगा ये जो है ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई आर्मेचर को देने के लिए 6 ब्रश का सेट है क्योंकि 6 वोल्ट डीसी मोटर है तो 6 ब्रश का सेट है तो एक ब्रश होल्डर है ये देखिए आर्मेचर है उसका कम्यूटेटर दिख रहा है कॉपर का और ये ब्रश होल्डर लगे हुए हैं उसको सप्लाई देने के लिए आर्मेचर ये देखिए आर्मेचर जो है स्टैंड पे रेडी रखे हैं टेस्टिंग करने के लिए दूसरी बात बता दूं इंजन कोई भी एक डेट के अंदर 600 किलोमीटर चलेगा 600 किलोमीटर बोला तो आज जैसे डेट है 4 तारीख है 4 अक्टूबर जो इंजन रात को 4 बजे निकला है 12 बजे निकला है बॉम्बे से वो अहमदाबाद जाके वापस बड़ौदा आएगा अहमदाबाद पहुंच के रिटर्न में बड़ौदा आएगा सेम डेट में 4 तारीख को तो 600 किलोमीटर हो गया तो ही ये हमको कमा के देगा तो ही ये इंजन जो है हमको कमा के दे सकता है अगर 600 किलोमीटर से कम चला तो इंजन कमा के नहीं देगा तो हम लोग ने इंजन का लिंक इस प्रकार सेट किया है कि कोई भी सिंगल डेट में कम से कम इंजन 600 किलोमीटर तो जाना ही है। ये ड्राइविंग टेस्ट है अभी जो नया WRC-5 इंजन है उसका ड्राइविंग टेस्ट है ठीक है मैंने बताया इस प्रकार ये आगे स्पीडोमीटर है ये आगे ये स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले यूनिट आएगा अगर इंजन में कुछ भी फॉल्ट आता है इंजन के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले के ऊपर उसका इंडिकेशन आ जाएगा कि अंदर क्या फॉल्ट आया ठीक है और ड्राइवर जो उस डिस्प्ले को पढ़ के उसके हिसाब से वो ट्रबल शूटिंग करेगा नेक्स्ट हाँ वो नहीं नेक्स्ट तो ये मत आगे ये तो फाइनल है हाँ चलो ये है सर्किट ब्रेकर एयर क्लास सर्किट ब्रेकर मकतपुरा में ABB कंपनी है मिशन ब्राउनबर्ग वो ये बनाती थी मगर पिछले 20 साल से हमने इसको यूज नहीं किया ये सारे इंजन में लगे हुए थे इसका मेंटेनेंस बहुत होता था तो इसकी जगह पे जो नया लेटेस्ट मोटिवेशन है वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो मेन कॉन्टेक्ट ऑन ऑफ के है 25,000 वोल्ट जो मेन इसने लिया पेट्रोग्राफ ने लिया वो सप्लाई ब्रेकर को दिया ब्रेकर का जो मेन कॉन्टेक्ट है वो वैक्यूम चेंबर के अंदर ऑन ऑफ होगा जिससे वो कम ऑक्सीडाइज होगा और उससे उसका लाइफ बढ़ेगा मेंटेनेंस भी कम रहेगा तो ये अभी यूज नहीं है ये सब हमने फेड आउट कर दिए और इसकी जगह पे हमने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो GC अस्थान कंपनी के फॉरेन कंपनी है मगर इंडिया में है काफ़ी उसी के हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 12 लाख 15 लाख का एक आता है उसको अभी हम लोग ने यूज़ करना शुरू किया नेक्स्ट ये WRC-5 हाई स्पीड इंजन है ये अभी 130 की स्पीड से हम लोग दौड़ाते हैं और इसका ट्रायल हमने 180 पे लिया 180 किलोमीटर पे इसको दौड़ा के देखा है और बहुत ही सेफ इंजन है नेक्स्ट हाँ थोड़ा पॉज करना स्टॉप करना पॉज है ना देखिए क्या है ड्राइवर जब ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक सिलेंडर के अंदर 3 kg का प्रेशर आएगा वो प्रेशर से उसका पिस्टन बाहर निकलेगा और लीवर ऑपरेट होकर पहिए के ऊपर ब्रेक अप्लाई करेगा और सब सारे कोच में भी ब्रेक एप्लीकेशन आएगी ठीक है प्रेशर ड्रॉप होके BP5 में
सारे पहियों पे डिस्क ब्रेक लग जाएगी। जब ड्राइवर रिलीज करेगा ये पिस्टन वापस अंदर चला जाएगा, लीवर भी अंदर चला जाएगा, ब्रेक रिलीज हो जाएगी। अभी क्या होता है, जैसे एक घोड़ा रहता है, घोड़ा हॉर्स की पूंछ खींचो तो आगे के दो पैर ऊपर आएंगे। इसी प्रकार इंजन के पीछे ट्रेन का लोड है, आगे के पहिए अंदर नहीं हो सकते मगर ऑफलोड होते हैं, उस पर प्रेशर कम आता है। तो ड्राइवर क्या करेगा, ठंड के दिनों में जब पानी लगा हुआ है या बरसात के दिनों में जब ट्रैक गीला है या आगे कोई RFO ट्रेन गई है जिसका ऑयल ट्रैक के ऊपर लगा है और ड्राइवर नॉचिंग अप करेगा तो ट्रेन चलेगी नहीं, पहिया वहीं घूमेगा। देखा हुआ, पहिया एक ही जगह पे घूमेगा, ट्रेन आगे मूव नहीं होती। तो हमें क्या करना है, पहिया और पटरी के बीच में फ्रिक्शन लाना है। फ्रिक्शन लाने के लिए इंजन के अंदर रेती भर के रखी है, वो रेती ये पाइपलाइन के थ्रू, ये नोजल के थ्रू पहिया और ट्रैक के बीच में फोर्सफुली हम लोग डालते हैं, ताकि वो जो पहिया घूमता था फ्री, वो घूमना बंद हो जाएगा और ट्रेन आगे मूव करेगी। दिखा, वो देखिए पिस्टन बाहर आ गया, लीवर चला और ब्रेक लग गई, ठीक है। अब पिस्टन अंदर जाएगा तो ब्रेक रिलीज हो जाएगी। पिस्टन अंदर चला गया, ब्रेक रिलीज हो जाएगी। अब देखिए ये इस पे से किस प्रकार सैंड जो है वो पाइप में से निकल के पहिया और ट्रैक के बीच में देखो फेंकी जाती है इस प्रकार, ठीक है, ताकि पहिया जो फ्री घूमता था वो अभी फ्री नहीं घूमेगा और बंद हो जाएगा, ठीक है।